Assalamu alaikum, dear students. You know today our topic is the rule of the road. Uh, Rule of the road. It is by A.G. Gardner. It is an essay. It is based on the theme right social conduct, यानी मौजून समाजी बर्ताव, फीलिंग फॉर अदर्स, दूसरों के बारे में सोचना, फेलो फीलिंगनेस, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स इंटरेस्ट, दूसरों के मफाद, दूसरों की आज़ादी का ख्याल रखना, द कंप्रोमाइज बिटवीन पर्सनल लिबर्टी एंड सोशल डिसिप्लिन, यानी एक समझौता होना चाहिए ज़ाती आज़ादी इंडिविजुअल लिबर्टी के दरमियान और समाजी जो नज़्म ज़ब्त है उसके दरमियान, या लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो. Let us know something about the author. The author is A.G. Gardner, born in 1865 and passed away in 1946. You know he is one of the most popular essayists of 20th century. यानी वो 20वीं सदी का एक बहुत ही मकबूल इंशाया निगार है. He wrote his essays under the pseudonym Alpha of the Flow. वो अपने जो मज़ामीन जो essays वो लिखता था एक false name के तहत. False name क्या था? Alpha of the Flow. So Alpha of the Flow was the false name or pseudonym of A.G. Gardner. You know he was editor of the liberal paper Daily News for many years. His essays are uniformly elegant, they are graceful, they are humorous. His uniqueness lay in his ability to teach the basic truths of life in an essay in an easy and amusing manner. He had the talent to teach the basic truths of life in an easy and in an enjoying manner. The pillars of society, pebbles on the shore, many falls and leaves in the wind are some of his best known writings. You know our topic, the rule of the road. It is from Leaves in the Wind, written in 1918. 1918. Yes, dear students, on page number 141, where our lesson starts, there is a delightful little poem. The poem is about the poet's neighbors, and here we can appreciate, we can understand how the poet's neighbors disturb him. Let me read for you. The people upstairs all practice ballet. Their living room is a bowling. Their room is a bowling alley. Their bedroom is full of conducted tours. Their bedroom is full of conducted tours. Their radio is louder than yours. They celebrate weekends all the week. When they take a shower, your ceiling is leak.
They try to get their parties to mix by supplying their guests with pogo sticks, and when their fun at last abates, they go to the bathroom on roller skates. I might love the people upstairs more if only they lived on another floor. Yes, dear students, I feel you must have got the gist, the crux of this of this delightful little poem. The people upstairs all practice ballet. The poet says the people who lived in the second story, they all practice, they all play ballet. Ballet, it is a dance of Italy played on music. Here, the people who were upstairs, their living room is a bowling alley. Bowling alley means bowling done or practiced in a lane. Their bedroom is full of conducted tours. In their bedroom, they played on. It was just like conveyed trips. Oh, their radio is louder than yours. When they switched on their radio, it was always louder than yours, than others. They celebrate weekends all the week. They celebrated weekends, ends of the week. As we celebrate, they also celebrated, but they celebrated all the week, in the entire week. When they take a shower, when they take a bath, your ceilings leak, your floor it leaks. वहाँ पानी टपकता है. They try to get their parties to mix. Yes, they try to get their parties mixed. Their parties were mixed by supplying their guests with pogo sticks. They supplied their guests with pogo sticks. Pogo छड़ी जो होती है, हाँ. Yes, and when their fun at last abates, जब उनका ये playing fun जो ये enjoy करते थे, it abates, it ends. They go to bathroom on roller skates. रोलर स्केट जस्ट जो बर्फ पर फिसलने वाली स्केट्स होती, उसी तरह ये बाथरूम में जाते हैं. हाँ, I might love the people upstairs more. Now the poet concludes, I might love, मैं पसंद कर सकता था, जो लोग upstairs रहते हैं उनको और ज़्यादा पसंद करता, if they only lived on another floor, अगर वो next upward floor में रहते तो मैं इनको ज़्यादा. So we feel it is a sort of humor in these lines. Now, you can have your experience with your neighbors, similar experience. You have also met people who seem to have no respect for others. Have you ever been responsible for such behavior yourself? Maybe. Now, let us let us try. Now, dear students, let us try to dear students, let me read the summary in Urdu for you people. ये जो इसकी समरी है, यानी इसमें ऐसा लगता है आजकल के ज़माने में ज़ाती आज़ादी का जो असली मतलब है और मतलब और सोच बहुत कम लोग होते हैं. हम ज़ाती आज़ादी का तब ही मज़ा ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, जब हम दूसरों की आज़ादी का भी ख्याल रखें. हमें जो जी में आए वो नहीं कर सकते. कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद, कम्युनिस्ट इनकलाब आप जानते हैं ये रशिया में आया. इसके बाद एक बूढ़ी खातून पेट्रोग्रेड के एक कोचे में जा रही थी और इस बात पे बज़िद थी, यानी इसरार कर रही थी कि उस इनकलाब ने उसे आज़ादी दे दी है, लिहाजा उसे पूरे इख्तियार है कि वो सड़क के बीचों बीच होकर चलेगी, न दाएं
न बाएं उन पटरियों पर जो कि पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई है। खातून का इस तरह से सोचना गलत था। खातून ये न समझ पाई कि अगर कोई पब्लिक सड़क पर अपनी कोई लोग अपनी सड़क पर अपनी मनमानी करता रहे तो खातून और ज़ाब्ता तबाह हो जाएंगे। यानी खातून को भी जान का खतरा है और डिसिप्लिन नहीं रहेगा और अफरा तफरी का आलम पेश होगा और हादसा होते रहेंगे। वो समझने से कासिर थी कि सड़क पर आज़ादी ज़ाती आज़ादी नहीं बल्कि सारी बरादरी सारे समाज की वाहिद मिली जुली आज़ादी की सूरत है। लिहाजा हर किसी को मेल जोल और सबको बाहमीनी आपसी ताउन रखने की ज़रूरत है। अपनी आज़ादी का लामहदूद होना दूसरों की हम आहंगी उनका अमन और सहूलियत को तबाह कर देता है। गार्डिनर के मुताबिक यानी आथर के मुताबिक सुनहरी उसूल ये है कि जब हर कोई अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करे तो दूसरों की आज़ादी को भी यकीनी बनाया जाए। अगर इस उसूल की पैरवी न की गई तो ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी निज़ामी पैदा करेगी। सड़क का उसूल उन लोगों के इलाज के लिए दवा है जो ज़ाती आज़ादी की शराब पीने के मरीज़ हैं। यह ऐसा उसूल है जो हमारी दुनिया को रहने के लिए बढ़िया बेहतर से बेहतर और पुरअमन बनाता है, न कि अफरा तफरी लड़ाई की तारीख का मैदान। ट्रैफिक वाला पुलिस में सड़क के उसूल को अमली जमा पहनाने की मिसाल पेश करता है। जो पर्सनल लिबर्टी होती है ज़ाती आज़ादी उसकी दो शक्लें हैं। ज़िंदगी में कुछ हरकत ऐसी होती हैं जिनमें आदमी जो भी करना चाहे उसे करने की आज़ादी। मिसाल के तौर पर उसकी अपनी ख्वाहिश है कि अपने बेटे को जिस मर्जी स्कूल में भेजे या जो मर्जी मिठाई या पकवान खाए या किसी भी धर्म का पैरोकार हो वो किसी भी उसूल या पाबंदी से बंधा नहीं। लेकिन कुछ दूसरी हरकतें हैं जिनमें आदमी की हरकत दूसरों की ज़िंदगी से बेताल्लुक़ रहता है, यानी जिनसे कुल बरादरी या समाज मुतासिर होता है। ऐसे हरकत में उसे अपनी पसंद और नापसंद में अपने इर्द गिर्द के लोगों से तालमेल रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर किसी भी आदमी को आज़ादी है कि वह अपने बंद कमरे में आज़ाद ऊंची आवाज़ में गा सकता है, लेकिन आधी रात को छत पर चढ़कर दूसरे की नींद में खलल डालने के लिए ऐसा ऊंची आवाज़ में नहीं गा सकता। वो अपने बेटे को किसी भी स्कूल में भेज सकता है, लेकिन उसे जेब कुतरने या चोर की तरबियत दे नहीं सकता। वो अपनी बरादरी के लिए फिर खतरा बन सकता है। मुसन्निफ को एक वाक़ा याद आता है। मुसन्निफ को एक वाक़ा याद आता है कि जिसे वो अपनी नज़ीर के हक़ में बयान करता है कि किसी समाज के तय जज्बात जागृत हों। एक बार रेल के छोटे सफ़र के दौरान उसने गाड़ी में पढ़ने के लिए एक किताब खरीदी, लेकिन अपने हम सफ़र जो इसके पास वाली नशस्त में बैठा था के बायस न पढ़ सका। अपने दूसरे साथी मुसाफिरों के साथ वो ऊंची आवाज़ में बातें करता रहा। उसमें समाज की हमदर्द सोच बिल्कुल न थी। अगर होती तो वो देख लेता कि मुसन्निफ को बगैर खल के पढ़ने का हक है। एक महज़ब समाज में समाजी हमदर्दी पैदा होनी चाहिए ताकि हम यकीन दहानी करवाएं कि समाज में दूसरों की आज़ादी के अमली तौर पर मुनासिब इज्जत हो। मुसन्निफ का कहना है कि औरतें समाजी हमदर्दी की कमी में मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा कसूरवार हैं। एक मौजूद समाज में
मुसन्निफ का कहना है कि औरतें समझ हमदर्दी की कमी में मर्द के मुकाबले ज़्यादा कसूरवार हैं, गुनाहगार हैं। वजह है कि मर्द और उनके मुकाबले में समझदारी के बारे में ज़्यादा जानकार होते हैं, क्योंकि मर्द घर के बाद समाजी तालमेल में इखलाकी पैमाने के सिफात सीख लेते हैं, जबकि औरत को इसे मालूम रहना पड़ता है या होना पड़ता है। हमारी ड्यूटी, हमारा फ़र्ज़ है कि हम दोनों तरह की आज़ादी यानी शख्सी और समाजी आज़ादी का बचाव करें। हम जियो या जीने दो या सड़क का उसूल की पैरवी करने में वफादार हो सकते हैं। मुसन्निफ चाहता है कि साजिश के लोग इस उसूल के तहे दिल से पालन करें, ताकि वो लोग महज़िब कहलाएं, सोशेबल कहलाएं। हम दुनिया में एक महज़िब समाज बनाने में अपना फ़र्ज़ निभा सकते हैं अगर सड़क के आम उसूल को सच्चे दिल से निभाएं, तो हम अच्छे मर्द या औरत कहलाने के हकदार होंगे, काबिल हो सकते हैं। हम इस सुनहरी उसूल के ज़रिए रहनुमाई फराहम करके अपनी हरकत व अमल पैरवी से अच्छे अशख़ास की सूरत में पुकारे जाने का हक रखते हैं। अगर हम इस उसूल की पैरवी करें, मुसन्निफ का इस समत में यकीन नहायत अच्छा है। Dear student, you know the rule of the road. The rule of the road by A.G. Gardner. A.G. Gardner, it is an interesting essay. He suggests the principle of give and take in ordinary matters of daily life. We must live and let others live. In order to enjoy liberty to do something, we should be willing to curtail, to shorten, to lessen our own liberty. In life, rights and duties go side by side. We should protect our rights as free citizens, but our personal liberty should not meddle with the liberty of others. To enable others to enjoy liberty, we must willingly impose certain restrictions on our freedom. Otherwise, unlimited freedom will only lead to disorder, chaos, and confusion. Chaos and confusion. We cannot exercise our liberty everywhere. We have to follow rules. We cannot choose to go against the rules. For instance, if the pedestrians begin to walk in the middle of the road, and if the cab or car drivers drive on the pavement, then the end of such liberty would be universal chaos. If we don't stop our vehicle and the policeman is asking us to stop, there will be utter confusion, and it will be difficult to cross the busy road. Dear students, now let us start. Dear students, let us start our lesson. This lesson, sometimes sometimes misuse. We sometimes misuse individual rights and create problems for people who live with us in our society. Now the lesson begins. A stout old lady was walking with her basket down the middle of a street in Petrograd, to the great confusion of the traffic and with no small thrill to herself. It was pointed out to her that the pavement was the place for foot passengers, but she replied, I am going to walk where I like. We have got liberty now. It didn't occur to the dear old lady that if liberty entitled the foot passengers to walk down the middle of the road, it also entitled
the cab driver to drive on the pavement, and at the end of such liberty would be universal chaos. Everybody would be getting in everybody else's way, and nobody would get anywhere. Individual liberty would have become social anarchy. Yes, dear students, a stout old lady. A stout old lady was walking with her basket down the middle of a street in Petrograd to the great confusion of the traffic and with no small peril to herself. You know, stout means strong. Stout means St. Petrograd is the name of a city in Russia. Confusion means chaos and chaos disorder. Pavement it means footpath. Peril means danger or risk. Oh, as a stout lady, a strong lady, was walking चल रही थी with her basket अपनी टोकरी लेकर down the middle of a street, एक गली में नीचे, हाँ, बीचों बीच in Petrograd, रूस के एक शहर में, to the great confusion of the traffic. इसे क्या हुआ जो ट्रैफिक है उसमें disorder पैदा हुआ, and with no small peril to herself, और उसने अपने लिए कोई peril और डेंजर या रिस्क या खतरा महसूस नहीं किया. It was pointed out to her, उसे बताया गया, उसे इशारा किया गया, that the pavement was the place for foot passengers, कि जो फुटपाथ है ये जगह है इनके चलने के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, pedestrians के लिए. But she replied, लेकिन उसने जवाब दिया, I am going to walk where I like, मैं चलूँगी जहाँ मैं चाहूँगी. we we have got liberty now, अब हमने आज़ादी हासिल की है. So students, dear students, this is after the Russian Revolution, communist revolution. It didn't occur to the dear old lady. बेचारी इस प्यारी बूढ़ी औरत को ये समझ नहीं आया that if liberty entitled the footman to walk down the middle of the road, कि अगर जो आज़ादी है, entitled means gave the right to the passenger, to gave the right, यानी उसने आज़ादी ने हक दिया है पैदल चलने वालों को कि वो सड़क के बीचों बीच चलें. It also entitled the cab driver to drive on the pavement. फिर ये हक मिलेगा किसको, कार ड्राइवर को भी, कि वो ड्राइव करेगा, गाड़ी चलाएगा किस पे, फुटपाथ. And at the end of such liberty would be universal chaos. और जो इसका एंड होगा, नतीजा होगा, रिजल्ट होगा इस आज़ादी का, फ्रीडम का, it will be universal chaos. Here it means everywhere it would be confusion. हर जगह बदअमनी होगी, बदनज़मी होगी. Everybody would be getting in everybody else's way. हर कोई शख्स हर दूसरे शख्स के, हाँ, getting in means वो interfere करेगा, and nobody would get anywhere, and nobody would reach anywhere. कोई कहीं नहीं पहुंचेगा. Individual liberty would have become social anarchy. फिर जो इंडिविजुअल और पर्सनल लिबर्टी वो क्या बनेगा, वो समाजी एनार्की, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन बन सकता है और बनेगा. Yes, dear students, there is a danger of the world getting liberty drunk in these days like the old lady with the basket. खतरा है
दुनिया में कि वो क्या बनेंगे, लिबर्टी ड्रंक। लिबर्टी ड्रंक मीन्स पॉसिबली टू मिस यूज फ्रीडम, वो गलत इस्तेमाल करेंगे मुमकिन तौर आज़ादी का। इन दीज डेज, इन आजकल के दिनों में, लाइक द ओल्ड लेडी विद द बास्केट, जिस तरह जो बूढ़ी औरत है बास्केट लेकर, टोकरी लेकर। एंड इट इज जस्ट एज वेल टू रिमाइंड आवर सेल्व्स ऑफ व्हाट द रूल ऑफ द रोड मीन्स, और ये हमें भी याद दहाने के लिए अच्छा है कि रोड, रूल ऑफ द रोड, इसका क्या मतलब है, यानी जिंदगी में जो नज़्म ज़ब्त है उसका क्या मतलब है। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर that the liberties of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed। इसका मतलब ये है कि लिबर्टीज जो तमाम लोगों के लिए है, अगर उनको प्रिजर्व किया जाए, सेफ रखा जाए, फिर जो लिबर्टी है एवरीबॉडी, हर शख्स की, उसको कम भी किया जाए। curtail means cut short। when the policemen say at Piccadilly Circus, set us into the middle of the road and put us out his hand, he is a symbol of not of tyranny but of liberty। जब एक पुलिस वाला, मान ले कहाँ पे है, पिकाडेली सर्कस। पिकाडेली सर्कस ये वेरी बिजी सेंटर इन लंदन, जहाँ पे वायर नंबर ऑफ रोड्स मीट, वहाँ बहुत सारी सड़कें मिलती है। इट मीन्स ए सॉर्ट ऑफ जंक्शन। हाँ, अगर वहाँ पुलिस मैन वो सड़क के बीच में आता है और अपना हाथ बाहर रखता है, ही इज ए सिंबल ऑफ नॉट ऑफ टेरेंटी, वो जुल्म का, बर्बरियत का एक सिंबल या अलामत नहीं है, बट ऑफ लिबर्टी, वो फ्रीडम की अलामत है। यू मे नॉट थिंक सो, आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं या आप ऐसा ख्याल नहीं कर सकते हैं। यू मे बीइंग इन ए हरी एंड सीइंग योर मोटर कार स्टॉप्ड बाय दिस इंसोलेंस ऑफ ऑफिस। हाँ, यू मे, हो सकता है आप, बीइंग इन ए हरी, आप जल्दी में होंगे, सीइंग योर मोटर कार स्टॉप्ड, आप देखते हैं आपकी मोटर गाड़ी रोकी गई, बाय दिस इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, बाय दिस रूड बिहेविंग मैन फ्रॉम ऑफिस, या इस सरकारी आदमी से। फील दैट योर लिबर्टी हैज़ बीन वायलेटेड, आप महसूस करेंगे शायद आपकी आज़ादी उसको वायलेशन की गई है। हाउ डियर दिस फेलो इंटरफियर विथ योर फ्री यूज ऑफ पब्लिक हाईवे, आप सोचेंगे कैसे ये, हाँ, कैसे ये शख्स इंटरफियर करता है। इंटरफियर करने की, डियर मीन्स जुड़त करता है, जो आप फ्री यूज़ करते हैं पब्लिक हाईवे का, अवामी शाहरा का। देन इफ़ यू आर ए रीजनेबल पर्सन, अगर आप एक रीजनेबल पर्सन होंगे, यू विल रिफ्लेक्ट, यू विल थिंक दैट इफ़ ही डिड नॉट इंटरफेयर विद यू, अगर वो आपके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा, ही वुड इंटरफेयर विद नो वन, या वो किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, and the result would be you would never cross Piccadilly Circus at all। और रिजल्ट क्या निकलेगा, नतीजा क्या निकलेगा, आउटकम क्या होगा, आप कभी क्रॉस नहीं कर सकेंगे दिस बिजी सेंटर ऑफ लंदन। You have submitted to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality। You have submitted, you have accepted to a curtailment, एक कमी के लिए, प्राइवेट लिबर्टी, जो आपकी ज़ाती आज़ादी है। प्राइवेट इट अपोजिट इज पब्लिक, a curtailment, a cut or shortcut of private liberty in order that, ताकि you may enjoy a social order, आप लुत्फ उठाएंगे, आप इंजॉय करेंगे। सोशल ऑर्डर मीन्स समाजी हम आहंगी, with which makes your liberty a reality, it makes your liberty, your freedom a reality, a reality, a हकीकत। Liberty is not a personal affair only, but a social contract। You know, जो फ्रीडम है ये एक ज़ाती मैटर मामला नहीं है, बट ए सोशल कंट्रैक्ट, ये एक सोशल एग्रीमेंट है, एक समाजी
समझौता है, बरादरी का समझौता है। इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये एडजस्टमेंट है। और इन अदर वर्ड्स इट इन एकोमोडेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये जो मफादात होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उनको एडजस्ट किया जाता है, एकोमोडेट किया जाता है। In matters we do not touch anyone else's liberty, of course I may be as free as I like। वो मामला जो किसी दूसरे शख्स की लिबर्टी को बेशक छूते भी नहीं, टच भी नहीं करते हैं, आई मे बी एज फ्री एज आई लाइक, मैं उतना आज़ाद हूँ जितना कि मैं विश करूँ, मैं चाहूँ। इफ़ आई चूज टू गो डाउन द स्ट्रेंड इन ए ड्रेसिंग गाउन, अगर मैं सिलेक्ट करूँ कि मैं नीचे जाऊँ, कहाँ से नीचे जाऊँ, स्ट्रैंड, स्ट्रैंड जो है फैशनेबल स्ट्रीट है लंदन में, जहाँ बहुत सारे रोड्स मिलते हैं। इन ए ड्रेसिंग गाउन, एक ड्रेसिंग गाउन में, हाँ ड्रेसिंग गाउन, गाउन यू नो इट मीन्स ए लॉन्ग लूज रोब विद लॉन्ग हेयर, और मेरे पास क्या होंगे, लंबे बाल, एंड बियर फीट, और मैं चलूँ नंगे पाँव। Who shall say me nay, कौन कहेगा मुझे नहीं। और I have such a liberty which does not touch anyone else's liberty। You have the liberty to laugh at me, आपको आज़ादी आप मुझ पे हंसे, but I have liberty to be indifferent, लेकिन मेरी भी फ्रीडम है कि मैं आपको क्या करूँगा, I will pay no heed to you, and which heaven forbid, and which may God, it means may God save, और wearing a hat tall है, अगर मैं पहनूँ एक लंबी, एक ऊंची टोपी, फिराक कोट पहनूँ, एंड सैंडल्स एंड शूज, और गोइंग टू बेड लेट और गेटिंग अप अर्ली, या मैं देर से सो जाऊँ या सवेरे उठ जाऊँ, आई शल फॉलो माई फैंसी, I shall follow my fancy, and means desire or liking, and ask no man's permission। I have not take anybody's permission, और permission या इजाज़त नहीं लेना चाहिए। Dear students, I feel today it is enough. In if God wishes, we will on the next occasion we will start on in all these in a thousand other details.